स्पिरिचुअल जर्नी फॉर बिगनर्स बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आजकल एंड एवरीवन इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट ऑन दिस टॉपिक एंड दिस बुक ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड mainly focuses on this subject to understand our mind body intellect system, the consciousness and other things. So in order to help our readers to understand this topic, I have tried to explain the issues as mentioned in the book Transforming Journey of Mind. और इस इशू को बताने के लिए पहले तो मैंने उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया कि आजकल इसकी क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है एग्जैक्टली. देन आई हैव ट्राइड टू डू एन SWOT एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक कि स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है आजकल, व्हाई इट इज गेनिंग सो इम्पोर्टेंस. उसको मैंने नरेट करने की कोशिश की है थ्रू एन SWOT एनालिसिस. एंड आई होप दैट दिस वीडियो शैल बी हाईली हेल्पफुल, मोटिवेटिंग फॉर द बिगिनर्स. एंड दे कैन बी फ्रॉम एनी डोमेन ऑफ लाइफ. दे कैन बी टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, होम मेकिंग, एनीथिंग. सबके लिए काफी फायदे की चीज है विच वी मस्ट नो. एंड द होल फोकस इज दैट हाउ वी शुड इनोवेट आवर लाइफ, द वे वी एक्सपीरियंस आवर लाइफ. मुझे लगता है कि नाउ वी रीच टू द पॉइंट जहां हम लाइफ को अगर इनोवेट नहीं करेंगे देन वी विल बी मोर इनटू द प्रॉब्लम्स. सो SWOT एनालिसिस में इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जो मैंने इस बुक में ट्राई किया नरेट करने के लिए. प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो मुख्य बिंदु है वो फॉलोइंग पॉइंट से यदि आप समझ सकते हैं. पहला है कि इफ यू सी अराउंड अस देयर इज सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, loss of harmony happening around us. It may be in a small platform or it may be in a bigger platforms, regions, nations and globes and all. Different places pe. There is some kind of unbalancing in the system everywhere, driven by different regions. But it is not one region. The main reason is that दिस डिस्टर्बेंसेस जिसको हम देख रहे हैं, जो हारमोनी, जो लॉस जिसको हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट हैपनिंग आउटसाइड. बेसिकली दिस इज हैपनिंग इनसाइड अस. व्हेन ए पर्सन इज अलोन, एट दैट टाइम ऑल्सो ही इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स इनसाइड द माइंड. द कन्फ्लिक्ट, द डिविजन, द फियर, द स्ट्रेस, द एंग्जाइटी, the loss of near and dear ones, the loss of harmony, so many things are there. Mind alone is fighting all this battle. Outside it looks, it may be driven by this factor and that factor. But the core issue is that the problem is happening inside us, somewhere deep within us. So this is the problem statement. And these things in normal lifetime, when we are happy, when we are passing through, navigating through a good time, nothing happens much. But when we pass through tough times, bad times, failures, death of near and dear ones, at that time, how do we respond? How do we maintain the balance and harmony within us? How do we find those questions or those answers which comes to us naturally? So this is also one of the problem statement in this. Bad times, life becomes too tough to navigate. And each one of us, sometime or other time, we faces the tough time as well. Third issue is that this unbalancing or the loss of harmony is becoming more important क्योंकि आज के समय में it is all technology driven. So we are seeing an objectified outer world, lots of opportunity, lots of new things. We are traveling outside, moving out, taking our mind outside into from one
choice to another, to a next one, and all those things. So this is creating more importance of maintaining the balance within us. Because जितना दूर हम दिन के समय जाएंगे, we have to come back. So to come back and to contain the side effect of this outward journey of the mind, we need to create a balance within us. So this is also one of the very important points. So in a nutshell, I thought कि seeing all this point, why don't we do something innovation in this? Because innovation is must. Otherwise, what's happening is that because of limited knowledge and awareness, we have made this infinite existence into a finite one. Small, small ones. My world, your world, someone else's world. Each world filled up with so many conclusions. We know everything about each other. We know everything about the universe. That kind of state we experience within our mind. I know everything. It's fine. Something like that. So the infiniteness of the existence has been reduced. उसको छोटा कर दिया हमने, क्योंकि सबको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है. हर एक इंसान ने दूसरे के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए हैं, ओपिनियन ड्रॉ कर लिए हैं. एंड वी आर मूविंग इन दिस कंक्लूडेड वर्ल्ड. जहाँ सब कुछ कंक्लूड हो गया, वहाँ कहीं जाने का बसता ही नहीं है रास्ता. सब कुछ ही मालूम है, सब कुछ कंक्लूड हो गया, सब कुछ ओपिनियन ड्रॉ हो गया, तो हम आगे कैसे चलें? दैट प्रिसाइजली इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. मीन्स द space within our mind where there is a freshness, possibility of new things to come, possibility of new things to happen. Somehow we have blocked that space with what we know. We have blocked that space. So this is one of the problem statement. So having listened this problem statement, is there a way out? And I feel yes, surely there is a way out. And that precisely is the reason I am writing this book. Because I feel that we need to innovate the thing, we need to understand the thing, we need to create an awareness on new things. Because we have drawn too much conclusions into everything with our own ideologies, the compartments we have formed about the understanding, the compartments we have formed because of more knowledge or lack of knowledge about science, lack of knowledge about the spiritualism. It's a lack of knowledge of everything we are creating contents, limited knowledge. In factories and office premises, we are doing so much innovations to maximize the profit and efficiency. लेकिन प्रॉब्लम है कि इनोवेशन को हम लाइफ में कैसे करें? हाउ डू वी ब्रिंग द इनोवेशन इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ, सो दैट आवर लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव्स, experiences improves. And how do we create a balance within us? And balance especially in turbulent condition, tough conditions. When your mind is trying to find balance at that time, how do we adjust that? How do we create that kind of sense to maintain the balance within us? So this questions which I just told you, it gives me ample confidence that we can innovate the life. And that precisely has triggered me to write this book, narrating all the experiences, because these are all the experiences which I have felt. There is nothing like in this lecturing on certain issues, some ideas. No, I'm not saying that. What exactly I have experienced, that I am trying to narrate to you. You can also experience same thing. Once you experience all those things, then you will find that as a human being, I am not exactly what I have presumed about myself. I am something more than this, much, much more than this. हमने अपने आप को बहुत ही छोटा संकीर्ण समझ लिए हैं. जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारी कैपेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा है, तब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. बट जब तक हम ये कंक्लूड करते रहेंगे अपने बारे में, एक सेल्फ ओपिनियन हमने बना ली है, वी आर लाइक दिस ओनली, वी कैन डू दिस मच ओनली, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. आप सोचिए इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस में, माई सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, माई आईज, ईयर्स एंड ऑल दोस थिंग, if I cannot see something, can I say that it doesn't exist in this infinite existence? ये कितना absurd statement है. If I am not able to see something, if I am not able to listen something, I say it doesn't exist. ये जो अप्रोच है, दिस itself is a compartmentalized mind जो रहता है, unconditioned mind का ये thinking pattern है, वो इस तरीके का रहता है. So we have to cross this barrier of understanding through our sensing instruments. और
just keeping ourselves confined to this. But we have to break this thing, we have to go beyond this. So with this background in the mind, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, देन SWOT एनालिसिस का जो पहला पॉइंट रहता है, स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज. हमारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी क्या है, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. एज आई जस्ट नैरेटेड टू यू, द माइंड बॉडी इंटलैक्ट सिस्टम इज हाईली पावरफुल एंड होल्ड्स मेनी कैपेबिलिटीज विच वी आर रेयरली अवेयर. इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइस है. Once we know that these capabilities, life becomes much balanced because our knowledge improves, our awareness improves, and we don't get engaged into the smaller battles. Life is always evolving. The beauty is that life is always evolving from one phase to the next phase. And mankind is always evolved. There is no sense of stagnation. अभी हमें लगता है कि द टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ दीज डेज वी आर सेइंग नाउ दिस टेक्नोलॉजीज हैज कम मोबाइल फोन हैज कम समवेयर से अराउंड 2000-2005. इट्स जस्ट 20-25 years back so many things has happened. Even the electricity, the mother of all the thing, has come some 250 years back, but the mankind is existing for 10,000 years. So ये जो साइंस का जो हम और टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन जो हम देख रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बार हो चुका होगा और आने वाले समय में नए नए डेमोन्स्ट्रेशन होने वाले होंगे, प्रोवाइडेड द माइंड काइंड प्रिपेयर्स देमसेल्फ फॉर दिस न्यू काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज. क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आई मीन वी शैल बी restrained to evolve. We will be evolving, each one of us will be evolving, but we have to keep that window open so that we evolve in a peaceful way, in a joyful sense, and enjoy this journey of life instead of getting confined into the narrowness of the thinking and the mind. पुरानी लर्निंग, पुरानी जो नॉलेज बेस है, स्पेशली इन इंडिया विच आई स्टडीड अबाउट द उपनिषद एंड ऑल, देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी एनालिसिस about the macro and micro system existence issues. Lots of analysis. There are 8 different school of thoughts. Each school of thoughts have their own way of testing a knowledge, testing a things, and it's a very methodological. बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया. तो लोगों ने काफ़ी इस पर सोची है, ये क्या है जिसको हम देख रहे हैं, ये लाइफ क्या है जिसके हम लिए यहाँ बैठे हुए हैं. तो इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ सोचा है, in a psychological sense, in a much wider sense. So these capabilities already exist in our system. हमें बस इस कैपेबिलिटी को हमें एहसास करना है, उसको लर्न करना है, उसे एक्सपीरियंस करना है. जैसे हम उस कैपेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर लेंगे, सो मेनी थिंग्स विल गेट चेंज. कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ जहाँ पर कि आपको लगेगा कि हमारी स्ट्रेंथ की कितनी सारी चीज़ें हैं. नाउ विथ थॉट बेस्ड अप्रोच हम हर समय सोचते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सोचने से नॉलेज आ रहा है. और when we think, when we talk too much, when we discuss too much, we show that strength. But actually it is not like that always. Thoughtlessness, silence and still mind is extremely powerful. Unlike a robot which functions to the maximum extent with highest efficiency only when it is able to do the computation, analytics to its maximum state. But human mind is something else. Our consciousness becomes extremely powerful, or the mind becomes, brain circuits become extremely powerful when we are thoughtless, still mind. If you can experience this, even for few moments, even for some times, then we understand, okay, we can also experience like this. So all this thing will happen when we become aware of the consciousness as an element, as an entity, invisible entity directly within us. Silence इतना powerful होता है, once we start experiencing, then we'll understand this. And we need to also remember कि robot के case में, the man-made machine, or you can say a virtual human being, it is able to function only when some thought is given to it. Without thought, it is not able to function. It will not able to do anything.
But human beings with consciousness and without thoughts, we can experience many things. Thoughts come subsequently as an expression to those things what you are experienced. But our experiencing through consciousness exists much before this. So this thought based understanding और विचारों के साथ ही हम रहते हैं, ये विचारों के बिना हम नहीं रह पाएंगे, मतलब विचारों के बगैर हम नहीं सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है. आपके अंदर में वो प्रतिभा ऑलरेडी है. थोड़ा सा आपको स्टिलनेस और साइलेंस में जैसे आप ध्यान देंगे, देन यू विल फाइंड कि आपकी कैपेबिलिटी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है. मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस पढ़ाई करते समय हुआ, स्टडी करते समय हुआ. I could see many times the performance goes to the extreme levels when I am totally still and silence. I was surprised that ऐसे कैसे हो सकता है? How we can have this capability? But then it took me long time to realize those things. But अब मैं सोचता हूँ तो लगता है मुझे कि ह्यूमन माइंड तो बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल. हम जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे, इतना मैं कह सकता हूँ आपको. वो इतना कुछ कर सकता है, बट उसको कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ एक टाइप का सिचुएशंस चाहिए, तब वो प्रोसेस अपने आप में अनफल हो जाता है. कॉन्शियसनेस जो है वो 24/7 एग्जिस्ट करती है. इट इज़ नॉट द वेकिंग कॉन्शियसनेस आई एम सेइंग. जब हम जग गए हैं तब हम आई एम देयर, व्हेन आई एम स्लीप्ड आई एम नॉट देयर. एक्चुअली ऐसा नहीं है एग्जिस्टेंस में. ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. वी आर कॉन्स्टेंटली वी आर देयर 24/7. दिस कॉन्शियसनेस, दिस अवेयरनेस इज कॉन्स्टेंटली देयर. अगर हम जब ऐसा सोचेंगे, द एंटायर पर्सपेक्टिव और लुकिंग एट लाइफ इट चेंजेस, इट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड दैट प्रिसाइजली इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे इन दिस बुक. वी आर नॉट जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शनलिटीज ऑफ द सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स. हाथ क्या कर रहा, पैर, आईज, इसका फंक्शनलिटी का इंटीग्रेशन नहीं है ह्यूमन बीइंग. It is they are there to deliver us to do some functions, but we are not exactly those instruments. We are the consciousness who drives those instruments, and the consciousness which drives us remains active 24/7. Otherwise, you think 1/3 of our life, 33 years of our life, we just sleep. We remain in the zone of darkness, in the ignorance. We are not aware what's happening. Another 10-15 years in the childhood. So लाइफ में कितना बचता है? बहुत कम समय जब ऐसा बचता है जिस समय हम ये सोच पाते हैं कि एग्जैक्टली हु एम आई. सो दिस कॉन्शियसनेस बेस्ड ड्रिवन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक्सपीरियंस करना. और ये मेरे आपके बोलने से नहीं आएगा या मुझे आपको समझाने से नहीं होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू, शेयरिंग यू सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस. And once you experience this, once you understand that I am something more than this, more than what I have presumed about myself, then the transformation journey start हो जाती है. जैसे ही आपको ये लगेगा कि मैंने अपने बारे में जो कल्पना करके रखी कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं हूँ मैं इससे काफ़ी डिफरेंट हूँ और टोटली डिफरेंट हूँ और बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ. जब ये भावना हमारे अंदर में आ जाती है, देन आपकी उसको एक्सपीरियंस करने की आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. और वही फिर आपको नए नए रेवलेशंस आपको देते हैं, नई नई चीज़ें आपको देती हैं. ऐसा भी कहा गया है कि नॉलेज और अवेयरनेस इज ऑल्सो देयर विद इन यू, ईच वन ऑफ अस. आई मीन, वन ऑफ द मास्टर्स इन हिज लेक्चर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, आई हैव हर्ड दैट ही सेड द भगवद गीता, उपनिषद, एवरीथिंग इज देयर विद इन यू. There is nothing to ask from the outside world. We are the storehouse of all knowledge. इसका मुझे उतना तो मालूम नहीं था. मैं सोचता था ऐसे कैसे होता होगा. बट जब मैंने किताब लिखनी चालू की, काफ़ी सारी किताबें लिखी है मैंने, तो मैं बड़ा आश्चर्य होता था कि किताब की जो बहुत अच्छी लाइन्स हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, वो स्पॉन्टेनियसली आता है, अपने आप आता है. आपको उसके बारे में सोचने की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. अचानक से आपको एक थॉट आएगा, ऐसा लिखता हूँ, फिर आप लिखना चालू करेंगे, फिर वो पाथवे खुलता चला जाता है. ऐसा लगता है जैसे कोई आपको बैठ के आपके अंदर से आपको आंसर दे रहा है और आप आंसर लिख रहे हैं. क्वेश्चन भी आप पूछ रहे हैं, आंसर भी आप दे रहे हैं. बड़ा अजीब चीज़ है जो होता है. एंड ईच वन ऑफ अस कैन एक्सपीरियंस दिस. जैसे ही आपको ये होने लगेगा तो आपको समझ आएगा कि आई एम सो पावरफुल, बट मेरी ज़िंदगी
50 साल ये सोचते हो निकल गया कि नहीं, आई हैव टू पुट एन एफर्ट टू लर्न। एक्चुअली एफर्ट हमारे में कैपेबिलिटी ऑलरेडी इनबिल्ट है, नॉलेज इज देयर, कैपेबिलिटी इज देयर, बट ओनली वी आर नॉट अवेयर, वी आर लिविंग इन इग्नोरेंस। उसके कारण ये दिक्कत आ रही है। जैसे ही हम उसको इग्नोरेंस को हटा देंगे, हमारी कैपेबिलिटी अपने आप सामने आ जाएगी। यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, एंड दिस प्रिसाइजली इज द पॉइंट जिसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इंक्लूड किया हूँ। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। जैसे हमने देखा पहले स्ट्रेंथ क्या है, नाउ विल थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़। तो यदि आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आज के आईटी एरा में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली फ्लो हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वी आर एबल टू एक्सेस काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। और इंडिया में स्पेशली एंशियंट लर्निंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, तो हम उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्योंकि मैन काइंड इज एग्जिस्टिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड देयर एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और आज जो हम टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, आगे चल के और भी कई नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं। ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं पिछले 50 साल में या पिछले 20-25 ईयर्स में, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, उसके 200-250 साल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम आया था। लेकिन मैनकाइंड तो करीब 10,000 साल से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ को, एवरेज। सो कितनी सारी टेक्नोलॉजी आई होगी, कितने सारे नए नए चीज़ें आए होंगे पहले, और आने वाले समय में कितनी सारी चीज़ें आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव अपॉर्चुनिटी है मैनकाइंड के लिए। लेकिन इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी रिमेन पीसफुल, वी रिमेन विदाउट कन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन, और एक हारमोनी मेंटेन करके रहे एग्जिस्टेंस के साथ में। अपने सिस्टम को, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम को अच्छे एफिशिएंटली ऑपरेट करें, उसे पोजीशन करें, तभी जाके हमें आगे बढ़ने का अवसर बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन अब अगली बात आती है कि फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, वीकनेस क्या है सिस्टम में। हमने देखा है स्ट्रेंथ है, अब वीकनेस क्या है। तो जो सबसे बड़ा वीकनेस है वो एक, जैसे हम छोटे में बचपन से जब हम लोग बड़े होते हैं, एक साइकोलॉजी होती है जिसमें हम ऑलवेज ये सोचते हैं कि हमें बाहर की तरफ हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन करके हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, वो बनना है, एंड ऑल दोज थिंग। तो जब भी हम आउटवर्ड लुक में देखते हैं तो आउटवर्ड लुक देखने में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वी ऑलवेज फील द एब्सेंस ऑफ दोज थिंग। मैंने हमारी साइकोलॉजी में हर समय एक एब्सेंस की फीलिंग क्रिएट होती रहती है। हम हर समय बाहर देखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि हमारे पास में वो चीज़ नहीं है, फिर हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो हम बाहर देख रहे हैं ऑलवेज, और दूसरी गलती क्या हो रही है कि हम ऑलवेज हमारे अंदर में एक डेफिशिएंसी को फील करते हैं, एक एब्सेंस को फील करते हैं। लेकिन माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम ऐसा नहीं है, वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन बिकॉज हमारा फोकस आउटसाइड है तो हम अपने इनसाइड देख नहीं पाते हैं। और फिर वो साइकोलॉजी की हमारे पास में हर समय कोई चीज़ नहीं है, डेफिशिएंसी है, कोई चीज़ की एब्सेंट है, वो चीज़ हमें हमारे साइकोलॉजी को शेप करती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम, जो चैलेंज है। इस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करें, इस वीकनेस को हम कैसे एड्रेस करें, वो हम आगे चल के देखेंगे, जो हम किताब के माध्यम से काफ़ी बातें हमें बताने की कोशिश की है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, कभी टफ टाइम है, कभी अच्छा टाइम है, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लाइफ के जो हमारा एक्सपीरियंस करने का पैटर्न है उसमें बहुत टाइप के क्वेरीज माइंड में आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हमारी जो लर्निंग सिस्टम है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अर्निंग सेंट्रिक है, मतलब लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बेस्ड सिस्टम है। लेकिन हमें एक्सपीरियंस, लाइफ को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज माइंड में आती है,
दिमाग में आता है, लेकिन हम उसका जवाब नहीं मिल पाता है हमें, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कंटेंट है, जो इश्यूज हैं, वो ये नहीं है कि जो इंसान एक्सपीरियंस करता है एग्जैक्टली, बट वो हमारे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जब लाइफ में आगे बढ़ता है, वेन एवर दे फील द प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत आती हैं, अचानक से कुछ चीज़ हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं समझ नहीं आती है, वी लूज नियर एंड डियर वन, सो मेनी थिंग्स हैपन्स जो हमें डिस्टर्ब करती है इमोशनली, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल पाता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे भी ऐसी होगा क्या, एंड वन गोज इन टू सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये परसेप्शन। तो 2 पॉइंट बताए मैंने आपको, जो हमारी मेन चैलेंजेस, तो कैसे हम ओवरकम करेंगे बुक में, वो हमने आगे बताया। और तीसरा है कि परसेप्शन ड्रिवन जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंस है आजकल, जिसे मैं कहता हूँ सोशल मीडिया सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया जो लॉजिक या सिंड्रोम में क्या होता है कि वी ऑलवेज ट्राई टू कम अक्रॉस योर ओन थिंकिंग, योर ओन लाइकिंग, आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपके पास दिखते रहेंगे हर समय। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको दिख रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो आपके आसपास में दिख रहा है। सो लाइफ आपको ना इस तरीके से अपियर होने लगती है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली लाइफ ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ टोटली मैंने डिफरेंट थिंग है, यूनिक थिंग है। लेकिन ये सोशल मीडिया के ज़माने में ये एक बहुत बड़ा एल्गोरिथम, जैसे हम कह सकते हैं कि एक टाइप की एल्गोरिथम होती है, तो ऑलवेज वो एल्गोरिथम काम करता रहता है, आपके अपने चॉइस के चीज़ें आपको बार बार दिखाते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि परसेप्शन हमारा ना एक टाइप का परसेप्शन बिल्ड हो जाता है, तो हम जो ट्रूथ क्या है, जो असली चीज़ क्या है, उसको पता नहीं कर पाते, लेकिन ऑलवेज हम अपने खुद के चॉइस को देखते रहते हैं, बस ये एक थर्ड लिमिटेशन है। तो ये सब मिलके एक बहुत बड़ी चैलेंज बनाते हैं मैनकाइंड के लिए। तो उस चैलेंज के बारे में हमने कुछ कुछ किताबों में बताया है, और इस चैलेंज को का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हमें जो हमारे पास जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस के बारे में जो अवेयरनेस हमें होना चाहिए वो हमें नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिलीफ में अप्रॉक्सीमेशंस हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ को हम देख नहीं सकते वो चीज़ शायद एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ऐसा तो गलत हो जाता है। इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस में मेरी फाइनाइट आईज अगर कोई चीज़ को देख नहीं पाती है तो मैं उसे नेगेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा करते हैं। तो ऐसा होते होते क्या होता है, हमारी एक सोच बन जाती है। एक तो हमारी साइकोलॉजी आउटवर्ड देखने की रहती है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इट। फिर हम लोग परसेप्शन ड्रिवन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसा माइंड में है, जैसा दिखता है वैसे ही हमको, जैसा मन में सोचते हैं हमें दुनिया उसी टाइप की प्रतीत होती है, जैसा सोशल मीडिया में होता है। और लास्टली हम जो हमारी जो मेन कोर स्ट्रेंथ है कॉन्शियसनेस, उसके बारे में हमें कोई अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में अवेयरनेस हमें मिल नहीं पाता है, वी रिमेन इन इग्नोरेंस। तो ये सब कमजोरियां हैं, इन सबको कैसे करके हम एड्रेस करें, इनको कैसे हम रिमूव करें, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने किताबों में एक्सप्रेस करने की ट्राई किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने कॉन्शियसनेस एज ए एनर्जी फॉर्म को अगर हम अपने अंदर में रियलाइज़ करते हैं, एक आइडिया के माफिक नहीं बल्कि एक हकीकत के मामले में, एक ट्रुथ जिसको कि आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो जैसे ही आपको कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस होता है देन यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली। फिर आपको ज़िंदगी एक अलग टाइप की लगती है, वैसा नहीं लगेगी जैसे पहले लग रही थी। तो अभी हमने देखा कि चैलेंजेस, वीकनेस, स्ट्रेंथ हमने देखा, अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखी। नाउ वी शैल डिस्कस ऑन द थ्रेड्स। अगर हम थ्रेड्स को समझेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन करने के लिए या ट्रांसफॉर्मिंग माइंड का जो जर्नी है उसको शुरुआत करने के लिए थ्रेड्स क्या है, मेन थ्रेड्स कौन से हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है लिमिटेड अवेयरनेस एंड नॉलेज। क्योंकि हमें जब हमारी अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम बहुत बड़े एग्जिस्टेंस को हम बहुत छोटे छोटे फॉर्म में देखते हैं, फिर आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद में हम अपनी बैलेंस, अपनी हारमोनी खो देते हैं। तो ऑलवेज वी रिमेन इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। वो हैप्पीनेस, वो जॉयफुलनेस एज ए चाइल्ड वो हमें नहीं आ पाता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है।
अगर हमने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया देन आप सोचेंगे कि सोसाइटी ऐसी रहेगी जिसमें जो मेन लाइवलीनेस है वो मिस हो जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो हो रहा है आईटी ज़माने में, ये भी एक बहुत बड़ी थ्रेट क्रिएट कर रही है। बिकॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना गलत नहीं है, लेकिन बात है कि हम ऑलवेज ऐसे इंफॉर्मेशन को भी देख रहे हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको दूसरे पसंद करते हैं, जिसको दूसरे पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती रहती है। हमें नहीं पता इतने सारे वर्जन्स के साथ हम कैसे नेविगेट करें लाइफ में। तो इंफॉर्मेशन ड्रिवन एरा में इंफॉर्मेशन इंड्यूस जो डिस्टर्बेंस हैं, जो लॉस ऑफ हारमोनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थ्रेट है, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसे सुन रहे हैं, आज अभी से 1 घंटे पहले मैं कुछ और कर रहा था, उसके 1 घंटे पहले कुछ और कर रहा था, आप भी कुछ और कर रहे होंगे, और अभी से आधे घंटे बाद हम लोग कुछ और करेंगे। आप एक काम में चले जाएंगे, कुछ एक काम करेंगे, मैं भी और एक काम करूँगा। तो यदि आप इस प्रकार से यदि आप अपने लाइफ को देखेंगे तो एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर डूइंग समथिंग वेरी पर्पसफुली। हर चीज़ को आप बहुत अवेयरनेस के साथ जानबूझ के उसको अच्छे से करते हैं। कोई एक पर्पस होता है जिसको आप करते हैं, कोई एक एक्टिविटी होती है जिसको आप करते हैं, उसका एक पास्ट होता है, उसका एक फ्यूचर होता है, उसमें एक होप होता है, एक एम्बिशन होती है। तो यदि आप देखेंगे हमारा कोई भी समय दिन के वक्त जब भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा समय हम एक व्यर्थ या फालतू तरीके से कोई भी समय खराब नहीं करते। हर बंदा कुछ ना कुछ काम में करता रहता है, क्योंकि उसे उसके पीछे एक पर्पस दिखता है, एक उद्देश्य रहता है उसमें। फिर अचानक से क्या होता है, ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है, फिर अचानक से एक दिन हम गायब हो जाते हैं, या कोई हमारे फ्रेंड्स गायब हो जाते हैं, बहुत चाहने वाले लोग चले जाते हैं। तब बड़ा एक अजीब से शौक लगता है यार, जब लाइफ के पूरे हर सेकंड में एक पर्पस छुपा हुआ है, तो फिर मेरे यहाँ रहने का और यहाँ से चले जाने का पर्पस तो हमें पता ही नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन क्रिएट करती है। इस प्रॉब्लम को मैंने डिफाइन किया है डिसकंटिन्यूटी, डिसरप्शन एंड डेथ, 3 Ds। ये 3D बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ये बहुत बड़ी थ्रेट है। अगर हमारी नॉलेज अवेयरनेस हो जाएगी तो तीनों थ्रेट काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं। अदरवाइज ये तीनों थ्रेट हमें हर समय घेर के रखते हैं। हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन ऑलवेज द सेंस ऑफ डिसरप्शन, डिसकंटिन्यूशन एंड डेथ, स्टॉपेज, आई मीन, ये हमको ऑलवेज अनकॉन्शियसली भी हमें डिस्टर्ब करते रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थ्रेट है जिसको कि मैंने एनालिसिस में बात करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड जो किताब मैंने लिखी है, उस इशू को मैंने 4 पॉइंट से मैंने उसको देखा, उसके स्ट्रेंथ को हमने देखा, उसके वीकनेस क्या क्या है इसमें देखी हमने, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। इन सब को समझने के बाद यदि आप देखेंगे तो वे अहेड क्या है, आगे जाने का रास्ता क्या है। एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इस बुक को पढ़ने के बाद में कि हमें वी आर हेयर फॉर ए पर्पस, एक उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ हैं। और जो नॉलेज, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस के बारे में, माइंड के पावर के बारे में, आपके खुद के जो कंप्लीट जो आपका सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ के बारे में हम जितना जानेंगे, लाइफ को नेविगेट करना उतना आसान हो जाता है। यदि आप नेचर को देखिए, नेचर में 24/7 कितना कुछ काम हो रहा है नेचर में। अर्ली मॉर्निंग को देखिए, बर्ड रेडी होते हैं, अंधेरे में उड़ जाते हैं, फिर उजाले होने के तैयारी करते हैं, फिर जब जैसी मॉर्निंग होता है सब कुछ कितना कॉन्शियसनेस में कितना स्प्रेड होता है, हर चीज़ें काम करनी चालू कर देती है। फ्लावर्स हो गए, सब चीज़ फैलता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है नेचर में। फिर शाम होते होते फिर से सब वापस आते हैं, विथड्रॉ होता है कॉन्शियसनेस। तो आप देखेंगे ये मैसिव जो नेचर है, जो इनफाइनाइट सिस्टम है, उसमें मिलियंस ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें बिलियंस ऑफ प्रोसेस हैं, वो सब अपने आप हो रहे हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ हो रहे हैं। और एक फेज़ में वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे फेज़ में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना, यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे
कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे हो रहा है। इसके पीछे यदि आप देखेंगे बहुत इंटेलिजेंस है। बर्ड्स को आप देखिए, उनके बिहेवियर को आप देखिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखिए, जो पानी में फंस जाता है तो अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करता है। हर चीज में एक इंटेलिजेंस है, एक विजडम है, अपने आप ऑटोमेटिक है वो। और ये पूरे एग्जिस्टेंस में इतनी सारी प्रोसेस काम कर रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं कोई विचार नहीं है, कहीं कोई थॉट्स नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं, कोई केमिस्ट्री, कोई मैथ्स, कुछ भी नहीं है। शब्द ही नहीं है कोई, शांत, और उसमें सब कुछ हो रहा है। तो जब इतने बड़े एग्जिस्टेंस में, इतने बड़े विशाल एग्जिस्टेंस में सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो हम लोग फिर अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतनी क्यों प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। हम भी तो इसी का एक हिस्सा है, हम भी तो इसी का एक पार्ट हैं। तो शायद हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी के लिए मैंने अपने किताब के मुख्य मुद्दे को एक श्लोक के बीच में रखा, जो उपनिषद से मैंने पढ़ा था, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मतलब जैसे ये पिंडे मतलब मैं, जैसे मैं हूँ ना, ऐसे ही ब्रह्मांड, ये एग्जिस्टेंस है। यदि आप अपने आप को जान लेते हैं तो फिर आपको ब्रह्मांड में जानने के लिए कुछ रहता नहीं, सेम है। वहाँ भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो या तो हम नेचर को जान लें या फिर हम अपने आप को जान लेंगे, तो आप इस पूरे एग्जिस्टेंस की जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मैकेनिज्म है, वो पूरा एक आइडिया लग जाता है किस तरीके से काम कर रही है, क्या हो रहा है। तो ऐसे अवेयरनेस के साथ में, ऐसे नॉलेज के साथ में जब हम अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करके जीते हैं, तो डेफिनेटली जो इस किताब की जो ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड, उसका काफ़ी हद तक हम उसका अचीव करते हैं। और यही मेरा उद्देश्य था इस किताब में, इस चीज़ को जानने के लिए। क्योंकि एक बार जब हम इसको थॉट्स के फॉर्म में जान लेंगे, तो देन ईच वन ऑफ अस कैन एक्सपीरियंस दिस टिपिकल पावर, द एनॉर्मस कैपेबिलिटीज विद इन यू, जो आपके अंदर छुपी हुई है, जिसको एक बार आप जानेंगे तो हद से वो बाहर आ जाएगा और आपके लाइफ को बहुत अच्छे से नेविगेट करके चला जाएगा। वेयर यू कैन हैव ए लाइफ विथ लॉट्स ऑफ ब्यूटी, एबंडेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। और उसमें हर समय आपको चीज़ें एक इवॉल्व करके आगे की तरफ लेके जाएगी। कहीं भी कोई कंक्लूजन नहीं रहेगा। इट इज़ ऑलवेज एक्सेलिंग, ऑलवेज ही आगे जाते रहेगी। और शायद इसी रेस में, ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड के बाद में, हम लोग एक अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे, लेकिन ईश्वर के पाने के रास्ते में भी हम लोग चलने के लिए तैयार हो चुके होंगे। थैंक यू।